Let's start with JavaScript classes. Now, in the in the ECMA script 2015, as we know that now the ECMA scripts are introduced with with year within them, So in ECMA script 2015, also known as the ECMA script 2015 introduced classes. A class is a type of function, but instead of using the keyword function to initiate it, we use the keyword class. So class is also a type of function, but in ECMA 2015, we introduce the word class. And the properties are assigned inside a constructor method. Properties are assigned in a constructor method. So to initiate any property, we need to initiate a constructor method. Now, what is class definition? The class definition, we use the keyword class to create a class and add the constructor method. The constructor method is called each time the class object is initialized. Okay. Use the keyword class. So class is a function which use always add a constructor method. From constructor method, we use to initialize our objects. We use to initialize our class objects. See, here it is a simple example. We create a class car. We just have a constructor method. Whenever we define a class, we have a constructor method, and in this constructor method, what will happen? We define our object, and this will define this keyword. Okay, this keyword will define that the car name. This keyword will define the object name. This keyword will define the brand. This dot car name will be a object from this past thing, brand. Okay. Now, this is what a class definition is all about. Okay. This is what a class definition is all about. Create an object called my car based on the car classes. Okay. The constructor method is automatically when object initialized. Now we need not to define constructor in a JavaScript. Constructor method is automatically initialized in the JavaScript. Constructor method is automatically initialized when the object is initialized. Now, this is what a method is. Now, when the use word method, and we say that there is a class is like a function only, and we are also introducing a new word method, constructor method. But really, the speciality of the constructor method, we need to understand that. See, what is the speciality of the constructor method? Let's discuss. The constructor method is special. It is where you initialize properties. It is called automatically when a call is initiated. When a call is initiated and it has the exact name constructor. In fact, if you do not have a constructor method, JavaScript will add an invisible and empty constructor methods. Okay. It's as simple as possible. Wherever you need to initialize a new object, we need to initialize a new constructor method. That's it. The construct method is special. It is where you initialize properties. It is called automatically when a class is initialized. And it has to have the exact name constructor. In fact, if you do not have a constructor method, JavaScript will add an invisible and empty constructor method. Okay. We need to understand that. Create a method named present. Now, here. क्लास कंस्ट्रक्टर की जगह कुछ और नहीं लिख सकते? नहीं, आप कंस्ट्रक्टर ये तो आपको डेफिनेशन करने के लिए दे रहा है, वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज हो जाता है। ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा है कि क्लास कार में कंस्ट्रक्टर एक ब्रांड है। तो जब आप ब्रांड बाय डिफॉल्ट, आप जब पिछले वाले जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स में देखते थे document.getRight में, उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर मेथड ही तो रहता था, ठीक है? तो वो उसमें आप एक आईडी पास करते थे, तो वही आईडी जो है एज ऑब्जेक्ट की तरह क्लास इनिशिएटर की तरह काम करती थी। बाद में उसी क्लास इनिशिएटर का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता था, कंस्ट्रक्टर मेथड जो है आपके जो इनलाइन एचटीएमएल में है, इनलाइन एचटीएमएल में आपके जो स्टेटमेंट थे उसको जो भी आप लिखते थे उसको राइट कर देते थे, ठीक है? नाउ what is here is just an explanation actually. So just
एक्सप्लेनेशन एक्चुअली। क्लास कार कंस्ट्रक्टर ब्रांड, ठीक है, दिस डॉट कार नेम इज इक्वल टू ब्रांड। नाउ क्लास बनाया एक कार, उसका कंस्ट्रक्टर बनाया ब्रांड, हमने एक दिस लिया कार नेम, ठीक है। अब हमने आप कार नेम लिया, उसको ब्रांड, एक ब्रांड जो है एक ऑब्जेक्ट उस क्लास से निकालने की कोशिश की, उसमें देखा प्रेजेंट मेथड है कि नहीं, रिटर्न किया आई हैव अ दिस डॉट कार। दिस डॉट कार नेम का मतलब क्या है, जो भी ब्रांड में कार एज अ आर्गुमेंट पास होगा वही ऐड हो जाएगा। तो माई कार इज इक्वल टू न्यू कार फोर्ड। न्यू कार फोर्ड का मतलब क्या है, माई कार क्या है, माई कार क्या है, एक ठीक है, एक वेरिएबल है, एक समझ, अभी हाल फिलहाल से मुझे एक वेरिएबल है जिसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है जो कार कंस्ट्रक्टर में फोर्ड को पास कर रहा है। अब आप देखोगे और फिर वही डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे डीएम की प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, तो आप देखोगे कि स्टेटमेंट आ जाएगा आई हैव अ फोर्ड। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, जब आप डेमो पास करते हैं, कंस्ट्रक्टर ब्रांड पास करते हैं, दिस डॉट कार नेम पास करते हैं, तो जब प्रेजेंट करते हैं तो रिटर्न करते हैं तो दिस डॉट कार नेम का सीन, ऐसा सीन, ठीक है। अब माई कार में न्यू कार फोर्ड है, इसको कैसे पास करेंगे, इसको आपको समझना पड़ेगा भाई, ये कैसे पास किया, ठीक है, इसको पास कैसे किया जाए, इसको आपको बहुत ज्यादा समझना पड़ेगा कि काम होता कैसे, ठीक। अब आप समझिए इसको कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जब डेमो में क्रिएट होता है तो इनर एचटीएमएल है क्या, इनर एचटीएमएल है, इनर एचटीएमएल में मैंने वही जो समझाया आपको कि यहाँ पे डीओएम चलेगा, फिर आपके माई कार आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, उसके बाद डॉट प्रेजेंट कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया और आई हैव ए फोर्ड, आई हैव ए फोर्ड, ठीक है, आई हैव ए फोर्ड मेथड को आपने डिफाइन किया, ठीक। तो ये एक क्लास था, जो क्लास की तरह जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, क्लास हमेशा कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू ही अपने ऑब्जेक्ट्स को निकालते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, constructor method is special. It is where you initialize properties. It is called automatically when a class is initiated, and it has have the exact name constructor. In fact, if you do not have a constructor method, JavaScript will add an invisible and empty constructor method. This is a most important factor. This is a most important factor. ठीक है, JavaScript will add an empty and add invisible and empty constructor method. Now, we need to understand this. Where the thing can be done, ठीक है, you are also free to make your own methods. Now, need to understand this, where the things can be done. See, we have a class car, we have a constructor brand, this class car name is brand, and we just get I have a Ford, and it's pure through programming. As you can see the example above, you can call the method by referring objects method name followed by parenthesis. Any parenthesis will go inside a parenthesis. Okay. Now, we have just a present method in which we present a parenthesis. And we have a class car, we have a constructor brand, and this car name has a brand, and here we define a car, class. We have a constructor as a band as an argument, and this brand is this represent the object. This represent the from this class we are going to initiate an object with name is a car name dot car. This dot car name as an object which have a brand. Now the semicolon has been closed, then we initialize present, then we return next I have. Now I have के बाद this dot car name का मतलब ये this represent नहीं होगा, जो car name आप brand में डालेंगे वही represent हो जाए, वो वहीं पे उसको initiate कर देगा. Now my car is equal to new car Ford, document dot get element by id, inner HTML, my car dot present hello, ठीक है. पास पैरामीटर इनटू प्रेजेंट मेथड, जब आपने पैरामीटर पास किया ना प्रेजेंट मेथड में हेलो आई हैव अ फोर्ड कार्ड, ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि यहाँ से कार इनिशिएट हुआ और आपने हेलो आपने लिखा हेलो, ठीक है, यहाँ से इनिशिएट किया हेलो, फिर आई हैव इनिशिएट किया इस रिटर्न से, और ब्रांड में आपने जो पास किया था फोर्ड, इस ब्रांड में पास किया आपने फोर्ड, तो फाइनली जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इन एचटीएमएल है उसमें निकल लिख के आता है हेलो आई हैव अ फोर्ड का. तो ये पूरा एक
एक डिवीजन है क्लासेस का ना। हम कंस्ट्रक्टर मेथड समझ गए हैं, अब हम एक स्टैटिक मेथड समझते हैं कि स्टैटिक मेथड कैसे काम करता है, क्योंकि अगर हम ये समझ जाएंगे ना तो ये थोड़ा एक बेसिक ब्लॉक हो जाएगा कि कैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ब्लॉक काम करता है, तो हमें और हेल्प होगी आगे की चीजों में। स्टैटिक मेथड क्या है? स्टैटिक मेथड आर डिफाइंड ऑन द क्लास इटसेल्फ एंड नॉट ऑन द प्रोटोटाइप। ये प्रोटोटाइप नहीं है। That means you cannot call a static method on the object mycar, but on the class car. Object क्या है? mycar. Static method हमेशा कहाँ पे काम करेगा? कार पे। क्लास कार कंस्ट्रक्टर स्टार्ट होता है, स्टैटिक होता है हेलो, फिर रिटर्न करता है हेलो। माई कार, न्यू कार, फोर्ड। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेमो इन HTML, आपने यहाँ पे कार डॉट हेलो किया और हेलो को पास कर दिया, ठीक है, ठीक है। तो आपने सीधे हेलो को यहाँ पे पास कर दिया। ये स्टैटिक मेथड होता है कि आप उसके मेथड की फंक्शनैलिटी में चेंजेस नहीं कर सकते अगर आपने स्टैटिक कर दिया। अगर आपने माई कार को एज अ स्टैटिक मेथड डिफाइन कर दिया तो उसके फंक्शनैलिटी में आप चेंज नहीं कर सकते, तो आप कोई भी पैरामीटर अब उसमें भेज नहीं सकते। बस यही होता है। जैसे आपने हेलो एक्स कर दिया ना, तो हेलो में माई कार का डेफिनेशन डालने पे भी वो पास नहीं होगा, क्योंकि वो स्टैटिक मेथड है, पैरामीटर वो नहीं लेगा। स्टैटिक मेथड में कोई भी नया पैरामीटर्स आप ऐड नहीं कर सकते। अब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है जी? इनहेरिटेंस में क्या होता है, आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्लास से क्लास में इनहेरिटेंस करते हैं और आप यूज करते हैं जी एक्सटेंड कीवर्ड। यहाँ पे आपने कार को डिफाइन किया, ठीक है, आई हैव दिस ब्रांड ऑफ कार, और उसके बाद आपने क्लास मॉडल को एक्सटेंड किया, क्लास मॉडल क्लास को एक्सटेंड किया, ठीक है। तो आपने जो उस माई हैव ए कार को इट इज अ दिस मॉडल। दिस मॉडल का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मॉडल आपने डिफाइन करेंगे वो, और जो यहाँ पे फोर्ड का जो यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है माई कार डॉट शो। तो शो देखिए कहाँ पे डिफाइन किया गया। शो ये मेथड है जिसके डेफिनेशन दिया गया। तो शो में जो पास किया गया वो वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू पार्ट किया गया फोर्ड और मस्टंग। और ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का रोल प्ले है कि आपने जो माई कार डिफाइन किया, ठीक है, माई कार आपने डिफाइन किया और आपने एक नया आपने माई कार वेरिएबल लिया, एक मॉडल लिया, उसमें फोर्ड और मस्टंग पास किया और उसके बाद माई कार डॉट शो किया। तो अब इसमें देखिए आप दोनों क्लास की प्रॉपर्टी पाएंगे। आपने सबसे पहले आई हैव अ फोर्ड इट इज मस्टंग, यहाँ पे लिखा आई हैव ए कार, कौन सा कार जो पास करेगा, वो पास किया हुआ मस्टंग। और इट इज अ मस्टंग का कैसे ये आपने फोर्ड में दो पैरामीटर पास किया, फोर्ड और मस्टंग। फोर्ड कहाँ पे ऐड हुआ? इधर। और मस्टंग कहाँ ऐड हुआ? इधर। तो ये हमारा प्रोग्रामिंग का मॉडल है कि आप यहाँ पे क्या किए, क्लास को एक्सटेंड किए हैं, तो दोनों क्लास की प्रॉपर्टी यहाँ पे शो हो गई है। तो ये क्लास कार क्लास हो गई सुपर क्लास, हमेशा सुपर क्लास को बाद में लिखते हैं, और मॉडल हो गई सब क्लास को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिख के क्या आ गया, I have a Ford car, it is Mustang. Use the extend keyword to inherit our method from the another class. Use the super method to call the present parent constructor function. I have a Ford, it is Mustang. ठीक है। तो सुपर क्या रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट क्लास को। हमेशा इनहेरिटेंस में सुपर क्लास सब क्लास होता है। सुपर क्या रिप्रेजेंट करता है? पेरेंट क्लास को। सुपर रिप्रेजेंट पेरेंट क्लास। तो super by calling super method in the constructor method, we call the present constructor methods and get access the parent properties and methods. ठीक है। So inheritance is useful for code reusability. Use property and method of an existing class when you create a new class. आप देखिए, आप हमेशा इनहेरिटेंस क्या करता है कि यहाँ पे आप रियूजेबिलिटी के प्रॉपर्टी के थ्रू नए क्लास को एक्सटेंड कर रहे हैं, आप नए क्लासेस को बना रहे हैं, ठीक। तो आप क्या समझ गए? आप समझ गए क्लास, आप समझ गए कंस्ट्रक्टर मेथड, आप समझ गए इनहेरिटेंस, आप समझ गए एक्सटेंड कीवर्ड, आप समझ गए सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड हमेशा पेरेंट के लिए यूज किया जाता है, दिस जो क्लास से ऑब्जेक्ट निकल रहा है उसके लिए यूज किया जाता है, और ये बताने के लिए कि इसी क्लास का मेथड है। और आप अब चल आ रहे हैं गेटर सेटर। गेटर सेटर क्यों? क्योंकि हमें क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन करना रहता है, तो वहां पे गेट सेट मेथड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप यहाँ देखो, classes also allows you to get used getter setters. Getter setters क्या होता है जी? क्लासेस क्या होता है जी? अब देखो, classes allows you to use getter setter. It can be smart to use getter setter for your property, especially if you want to do something special with the value before returning them or before you set them. To add getter and setter in the class, use the get and set keyword.
अब कार जो है कंस्ट्रक्टर ब्रांड है, दिस इज द क्लास ब्रांड कंस्ट्रक्टर। आप जो है आपने एक गेट किया सी नेम, रिटर्न कर लिया क्लास को। जब आप क्लास रिटर्न करेंगे तो यही मेथड एग्जीक्यूट होगा और वो ब्रांड प्रिंट होगा। और यहाँ पे आप यहाँ पे पहले गेट करेंगे रिटर्न टाइप में, फिर सेट करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट हो, ये वाला क्लास होना चाहिए, दिस डॉट कार नेम, मतलब ये ऑब्जेक्ट कार नेम में एज अ एक्स वेरिएबल पास होगा। पहले आप गेट करेंगे कार को, फिर सेट करेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए माई कार, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, आपने नए न्यू कीवर्ड से एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया कार में और उसको पैरामीटर क्या पास किया 4। तो अब क्या आएगा माई कार डॉट सी नेम। सी नेम क्यों आ रहा है? क्योंकि गेट किया सी नेम को, फिर सेट किया। तो अब पूरा स्टेटमेंट क्या लिख के आएगा आप अभी देखिए, ये पूरा स्टेटमेंट क्या लिख के आता है। ये पूरा स्टेटमेंट लिख के आता है जी, जो आपने माई कार डॉट से आपने फोर्ट को सेट किया तो फाइनली स्टेटमेंट क्या लिख के आया 4। यहाँ से आपने वैल्यू को गेट किया, यहाँ पे इसको सेट किया और आपने पास कर दिया वैल्यू दैट इज 4। ओके, अब देखिए द कार नेम ऑफ द गेटर सेटर मेथड कैन नॉट बी सेम एज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, मेनी प्रोग्रामर यूज अंडरस्कोर कैरेक्टर बिफोर द प्रॉपर्टी नेम टू सेपरेट गेटर सेटर मेथड फ्रॉम द एक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक, क्लास कार डिफाइन किया, आप कंस्ट्रक्टर ब्रांड दिए, दिस कार नेम का ब्रांड यूज किया, फिर गेट किया, फिर दिस किया, फिर आपने फिर कार को फिर डिफाइन किया, फिर माई कार न्यू कार डेफिनेशन दिया, फिर फाइनली माई कार डॉट कार नेम यूज किया गया। यहाँ पे देखिए सेटर मेथड का सिंटेक्स विदाउट पैरेंथेसिस, इन्होंने सेटर मेथड यूज द सेम सिंटेक्स एज व्हेन यू सेट अ प्रॉपर्टी वैल्यू विदाउट पैरेंथेसिस। ये क्या है कि ये डिपेंड करते हैं कि भाई सेटर मेथड पे कैसे काम करें। नाउ वी यूज अ सेटर मेथड, setter method always add property, add value to the property। यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, रिटर्न कर रहे हैं दिस कार को, फिर एक्स को ऐड करा रहे हैं। तो आपने कार फोर्ड है फिर वोल्वो है। आप इस कार की एग्जीक्यूशन को देखिए, आपने क्या किया, जावास्क्रिप्ट क्लास सेटर को लिया, आपने सीधे पैरेंथेसिस प्रिंट किया, यहाँ पे ब्रांड नेम लिया और पहले फोर्ड था, फिर माई कार डॉट कार नेम, पहले माई कार फोर्ड था, फिर आपने क्या किया, इसको ऐड कर दिया कार नेम में और एक नया वेरिएबल पास कर दिया, वो है वोल्वो। और फाइनली वो चीज क्या हो गई जी, वोल्वो। तो यहाँ पे क्या किया आपने, एक तरीके से ओवरराइड कर दिया विद हेल्प ऑफ सेटर मेथड। यही काम आप करते हैं जब आप लूप करते हैं, गेटर सेटर की वजह से एक के ऊपर एक ओवरराइड करते हुए चीजों को चलते हुए चलिए। ठीक है, हाँ। अब बात होती है होस्टिंग की। अनलाइक फंक्शन अदर जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशन, क्लास डिक्लेरेशन आर नॉट होस्टेड। होस्टिंग नहीं होती। You must declare a class before you can use it। आप हमेशा क्लास को डिक्लेयर कीजिए जब भी आप इसको यूज करते हैं। ठीक है, अच्छे कौन से फोन नंबर है? ठीक है, ठीक है। अब आप समझिए पूरा, थोड़ा सा डिटेल में अपने दिमाग में बैठाइए कि गेटर सेटर मेथड कैसे काम कर रहा है, क्लास वेरिएबल कैसे काम कर रहा है। इस चीजों का जब तक बैठाएंगे नहीं ना दिमाग में, तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक आपको बहुत समझ नहीं आएगा, तब तक बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। पहले इसको समझिए क्या हो रहा है, गेटर सेटर क्या चल रहा है। ठीक है, चीजों को जैसे चीजें चल रही हैं, चीजें चलती कैसे हैं। ठीक है, अब देखिए, तो अब आप मेरे ख्याल से आपको ये भी समझ में आएगा कि सुपर क्या है, कैसे सुपर क्लास क्या है, यूज कैसे की जाती है, एक्सटेंड कीवर्ड से इनहेरिटेंस किया जाता है। यही सब फंक्शनैलिटीज थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एप्लीकेशन जब आप जावा में करते हैं तो ही होता है। देखिएगा अक्रॉस द चैनल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वर्ड्स का जो डिफिनेशन है वो नहीं चेंज किया गया जिसे समझना आसानी हो। ठीक है, फॉर ऑर्डर डिक्लेरेशन लाइक फंक्शन यू विल नॉट गेट एन एरर व्हेन यू try to use it before it declared। ठीक है, यहाँ पे आप यूज किया है कि स्ट्रिक्ट में मतलब क्या है, स्ट्रिक्ट मतलब क्या है,
अगर इफ यू यूज अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग, अगर स्ट्रिक्ट क्लास का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया विदाउट डिक्लेयरिंग इट, तो वो आपको वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सिंटैक्स इन क्लास मस्ट बी रिटन इन स्ट्रिक्ट मोड। पहले आपको, इसीलिए आपको हमेशा एक आईडी बनानी पड़ती है, आईडी इज इक्वल टू डेमो। डेमो को जब आप पास करते हैं एज अ पैरामीटर, एज अ डिक्लेयर करते हैं, तब जाके वो काम करता है। ठीक है, ठीक है। ये पूरा एक जावा का क्लास है जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जावा क्लास की फंक्शनलिटी की। अब आप देख लेते हैं जावा का, जावा स्क्रिप्ट का फॉर्म्स कैसे काम करता है ना। जो फॉर्म्स है ये अपने आप में प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि कैसे हम जावा स्क्रिप्ट की चीजों को लेके चलते हैं। एचटीएमएल फॉर्म वैलिडेशन, एचटीएमएल फॉर्म के वैलिडेशन इसको बहुत बार सुन चुके हैं कि एचटीएमएल फॉर्म के वैलिडेशन जावा स्क्रिप्ट के थ्रू कम होता है। फॉर्म फील्ड इज एम्प्टी है, फॉर्म फंक्शन अलर्ट करता है मैसेज का और रिटर्न करता है फॉल्स, प्रिवेंट करता है सबमिशन का। फंक्शन में क्या होता है, वैलिडेट करता है फॉर्म को। तो वेरिएबल x बराबर डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, फॉर्म फ्रेम डॉट वैल्यू, x इज इक्वल टू this is empty string definition, alert name must be filled out। यहाँ पे आपको नेम फील्ड हो जाएगा जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे और रिटर्न कर देंगे फॉल्स, फिर आप सबमिट करेंगे। फॉर्म माय फॉर्म एक्शन क्या कर रहे हैं आप, सबमिशन में वैलिडेशन होगा, इनपुट कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, फिर आपने स्क्रिप्ट कैन वैलिडेट न्यूमेरिक इनपुट। अब यहाँ से आप ये जो स्क्रिप्ट है ये न्यूमेरिक इनपुट को वैलिडेट करने के काम आ रहा है। आप ऑटोमेटिक एचटीएमएल के फॉर्म को आप भर सकते हैं ऑटोमेटिकली, रिक्वायर्ड फंक्शन नेम के थ्रू आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप में ये तरीका क्या है कि आपने अगर आप रैंडम वैल्यू किया तो ये स्ट्रिंग सबमिट किया, तो ये आप कुछ भी वैल्यू डालोगे तो वो रिसीव वहां पे एज अ ये इनपुट ले रहा है। इसका ज्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन पीएचपी में है कि कैसे ये और वर्किंग अच्छी से फॉर्म और अच्छे से कैसे बनेगा। फिर यहाँ पे आप देखिए कि वेरीफाई करना है कि नंबर है या नहीं, कि हमने स्ट्रिंग लिखा है तो ये इनपुट इनवैलिड है, और हमने जब नंबर लिखा है तो इनपुट ओके है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे नाम लिखना है जी, मान लीजिए सचिन लिख दिया तो हमने इसको सबमिट कर दिया, तो फॉर्म नेम में सचिन नाम का जाएगा जो इनपुट प्रोसेस होगा और वो आंसर होगा सर्वर से। तो यही फॉर्म की फंक्शनैलिटी है कि इसको प्रोसेस करने के लिए एक सर्वर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, डेटा वैलिडेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट द यूजर इनपुट इज क्लीन, करेक्ट एंड यूजफुल। वैलिडेशन का मतलब क्या है, क्लीन हो, करेक्ट हो, यूजफुल हो। टिपिकल वैलिडेशन के टास्क में हम क्या देखते हैं कि यूजर फील्ड इन ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, कभी कभी आप देखते हैं रेड कलर का आ जाता है, फिर एंटर द वैलिड डेट, एंटर द न्यूमेरिक फील्ड। मस्ट ऑफन पर्पस द डेटा वैलिडेशन इंश्योर अ करेक्ट यूजर इनपुट। नाउ वैलिडेशन कैन बी डिफाइंड बाय मेनी डिफरेंट मेथड डिप्लॉयड इन मेनी डिफरेंट वेज। एक चीज होता है सर्वर साइड वैलिडेशन, परफॉर्म्ड बाय अ वेब सर्वर आफ्टर इनपुट हैज बीन सेंट टू अ सर्वर। क्लाइंट साइड वैलिडेशन होता है, वेब ब्राउजर के थ्रू परफॉर्म होता है और इनपुट सेंड टू द वेब सर्वर। एंड ऑफ द डे सर्वर पे इनपुट सेंड होगा, लेकिन सर्वर पूरा मतलब क्या है कि सर्वर पे ही इनपुट को लास्ट में सेंड करना होगा। लेकिन क्लाइंट साइड वैलिडेशन में क्या होता है कि इनपुट को सर्वर में सेंड करने से पहले ही हम परफॉर्म कर लेते हैं और सर्वर साइड में देख लेते हैं कि इनपुट को सेंड करने के बाद में आफ्टर इनपुट हैज बीन सेंड बाद में परफॉर्म करते हैं। नाउ एचटीएमएल के कंस्ट्रेंट्स क्या है वैलिडेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट है। HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया था कंस्ट्रेंट वैलिडेशन। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन में HTML के इनपुट के एट्रीब्यूट के कंस्ट्रेंट के CSS सूडो सेलेक्टर्स के एट्रीब्यूट को, कंस्ट्रेंट के DOM प्रॉपर्टीज, देखिए इनपुट एट्रीब्यूट कि वो स्ट्रिंग है, वो नंबर है, वो कैरेक्टर है, क्या है। सूडो सेलेक्टर्स, ये सूडो सेलेक्टर क्लास है जब एक सेलेक्टर एलिमेंट पे बहुत सारे प्रॉपर्टी को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक सूडो क्लास की तरह बिहेव करता है, तो उसी को कहते हैं सूडो सेलेक्टर्स। फिर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल और प्रॉपर्टीज पे आप कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं और उन कंस्ट्रेंट वैलिडेशंस में आप देखो डिसेबल कर सकते हैं मैक्स, मिन, पैटर्न, रिक्वायर्ड, टाइप, बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। ये पूरा इसका सेट है, इसको आप जब प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो आप उस सेट्स के थ्रू बहुत सारे नए अपग्रेडेशन करते हैं अपने फॉर्म्स में। और ये है सूडो के सेलेक्टर्स, डिसेबल्ड, इनवैलिड, ऑप्शनल, रिक्वायर्ड, वैलिड। तो इन सब चीजों से आप पढ़े होंगे कि ऑप्शनल है, ये रिक्वायर्ड है, ये वैलिड है, ये इनवैलिड है, ये डिसेबल्ड है। तो ये हमारा एक फॉर्म का एग्जाम्पल है।
फॉर्म जैसे पता है कि ये सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग को देखता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियस है वैलिडेशन एपीआई के थ्रू ही काम करेगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे डेटा तो सर्वर पे ही जाना है। तो यहाँ पे हम ये दो मेथड्स का यूज करते हैं, चेक वैलिडिटी मेथड और सेट कस्टम वैलिडिटी। रिटर्न करते हैं इनपुट टाइप कंस्ट्रेंट वैलिड डेटा को, फिर सेट करते हैं वैलिडेशन मैसेज की प्रॉपर्टी को इनपुट एलिमेंट। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपने चेक वैलिडिटी चेक कर दिया और फिर यहाँ पे आप वेरिएबल को सेट कर रहे हैं, फिर आपने इफ को सेट कर दिया है, तो फिर आपने इफ की एक वैलिडिटी लगाई है, फिर अगेन वही, क्योंकि विदाउट स्ट्रिक्ट है क्लास, तो आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी वेरिएबल को। डेफिनेशन को आपने पास किया, बाद में आप वैलिडिटी मैसेज को चेक कर रहे हैं, तो इसको आप देखिए। तो फाइनली आपने चेक करना है, तो नंबर इज लेस देन 100 और ग्रेटर देन 300, एरर मैसेज इज डिस्प्ले। तो आप लिखिए 120 इनपुट ओके, ठीक है। नंबर इज लेस देन 100 और ग्रेटर देन 300, एरर मैसेज इज डिस्प्ले। तो अभी तो हमने ओके कर दिया है, अब हम करते हैं 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो यहाँ पे आ गया। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपने चेक की वैलिडिटी के फंक्शन को लगा दिया, किसकी वैलिडिटी, इसी के बीच में, ऐसा है, ठीक है। अब वैलिडिटी प्रॉपर्टी क्या है भाई साहब? वैलिडिटी, वैलिडेशन मैसेज और बिल वैलिड, कंस्टेंट बूलियन प्रॉपर्टीज, मैसेज और इनपुट वैलिडिटी। वैलिडिटी प्रॉपर्टीज क्या है? कस्टम एरर, पैटर्न मिसमैच, रेंज ओवरफ्लो, रेंज अंडरफ्लो, रेंज अंडरफ्लो, स्टेप मिसमैच, टू लॉन्ग टाइम मिसमैच, वैल्यू मिसिंग और वैलिड क्या है। रेंज के ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज भी देख लेंगे हम, कैसे कैसे चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अंडरफ्लो, ओवरफ्लो, इन सब चीजों को अभी तो जो था हम लोग मिडिल का देख रहे थे, ऐसे आप अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की भी चीजों को देख सकते हैं। तो ये एक पूरा